آج ہم قرآن پاک کی ایک بہت ہی روحانی اور اثردار سورت سورہ المزمل کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی جب دعوت اسلام کی شروعات ہو رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی جا چکی تھی۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑی ذمہ داریوں کو اٹھانے سے پہلے انسان کو اپنی روح کو مضبوط بنانا پڑتا ہے، اور روح کی مضبوطی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے رات کی عبادت، صبر اور قرآن سے گہرا رشتہ۔ شان نزول نازل ہونے کا واقعہ۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عظیم ذمہ داری کا بوجھ بہت بھاری تھا۔ آپ گھر لوٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ اسی حالت میں اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی اور ارشاد ہوا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ یہ پکار صرف ایک خطاب نہیں تھی بلکہ ایک عظیم مشن کی ابتدا تھی۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے اٹھا کر امت کی رہنمائی کی تیاری کا حکم دیا۔ اس صورت میں خاص طور پر تہجد کی نماز، صبر اور قرآن کی تلاوت کا ذکر ہے تاکہ دل مضبوط ہو اور آنے والی مشکلوں کا سامنا کیا جا سکے۔ ترجمہ کنز الایمان کے مطابق، اے چادر اوڑھنے والے، رات میں نماز میں کھڑے رہو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ بے شک ہم تم پر بھاری بات ڈالیں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا دل کو قابو میں رکھنے کے لیے زیادہ اثردار ہے اور بات کو سیدھا کرنے والا ہے۔ بے شک دن میں تمہیں بہت کام ہیں، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ان سے اچھے ڈھنگ سے الگ ہو جاؤ، اور مجھے اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو جو عیش میں پڑے ہیں، اور انہیں تھوڑی مہلت دے دو۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ڈھیر کی ہوئی ریت بن جائیں گے۔ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا گواہ بنا کر، جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت پکڑ سے پکڑا۔ تو اگر تم کافر رہو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ آسمان اس سے پھٹ پڑے گا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ پکڑے۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم رات کا حصہ کھڑے رہتے ہو۔ پھر جتنا قرآن تم سے ہو سکے پڑھو، اللہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں۔ سورہ کا پورا مضمون۔ یہ سورت 4 بڑے پیغام دیتی ہے۔ پہلا پیغام، رات کی عبادت کی اہمیت۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رات میں اٹھ کر قرآن پڑھو، کیونکہ رات کا سناٹا دل کو صاف کرتا ہے، روح کو طاقت دیتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ دوسرا پیغام، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ صرف تیزی سے پڑھ لینا مقصد نہیں، بلکہ سمجھ کر، محسوس کر کے اور دل میں اتار کر پڑھنا اصلی مقصد ہے۔ تیسرا پیغام، صبر اور استقامت۔ جب لوگ دین کی بات سن کر مذاق اڑائیں، جھٹلائیں یا تکلیف دیں، تب صبر کرنا اور اچھے طریقے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ چوتھا پیغام، آخرت کی تیاری۔ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، پہاڑ ریت کی طرح اڑیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری بنانا ضروری ہے۔ اس سورت کا اصلی مقصد یہ ہے کہ جو انسان اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اسے پہلے خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔
اور यह मजबूती मिलती है रात की तन्हाई, कुरान की तिलावत और सब्र से। रूहानी फैज, दिल और रूह की ताकत। सूरह अल-मुज़्मिल सिर्फ एक सूरत नहीं, बल्कि रूह की तरबियत का मुकम्मल निज़ाम है। जब इंसान इस सूरत को समझकर पढ़ता है तो उसके अंदर एक अजीब सुकून पैदा होता है। यह सूरत दिल की सख्ती को पिघलाती है और इंसान को अल्लाह की याद में झुका देती है। रात की तन्हाई में जब यह सूरत पढ़ी जाती है तो दिल से दुनिया का शोर कम हो जाता है और रूह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। इस सूरत का सबसे बड़ा रूहानी फैज यह है कि यह इंसान के अंदर सब्र और इस्तिकामत पैदा करती है। जब हालात मुश्किल हों, लोग ताने दें, मेहनत का नतीजा देर से मिले, तब यही सूरत याद दिलाती है कि अल्लाह सब देख रहा है। जो रात में उसके सामने खड़ा होता है, अल्लाह उसे दिन में संभाल लेता है। यह सूरत कुरान से मोहब्बत बढ़ाती है। जब इंसान वरतिलिल कुरान तरतीला को महसूस करता है तो वह समझता है कि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि जीने की किताब है। जो इसे ठहर ठहर कर पढ़ेगा, वह अपनी जिंदगी को भी ठहराव और तवाजुन के साथ जी पाएगा। रूहानी अमल आसान मगर असरदार। पहला अमल यह है कि हर रोज सोने से पहले कम से कम 2 रकत नफल नमाज अदा की जाए। उसके बाद सूरह अल-मुज़्मिल की तिलावत की जाए। अगर पूरी सूरत पढ़ना मुश्किल लगे तो शुरू की कुछ आयतें पढ़ ली जाएं। फिर अल्लाह से यह दुआ की जाए कि या अल्लाह, मेरे दिल को अपने कलाम से रोशन कर दे, मेरी जिंदगी को सीधा रास्ता दिखा दे और मुझे रात की इबादत की मिठास अता कर दे। जो शख्स 40 दिन तक यह अमल कर ले, उसके अंदर हैरान कर देने वाला रूहानी बदलाव महसूस होगा। दूसरा अमल यह है कि जब जिंदगी में कोई भारी जिम्मेदारी आए, इम्तिहान, कारोबार, परिवार की परेशानी या कोई फैसला, तो लगातार 11 रात तक सोने से पहले इस सूरत की तिलावत की जाए और अल्लाह पर पूरा भरोसा किया जाए। यह अमल दिल से घबराहट दूर करता है और इंसान को अंदरूनी सुकून देता है। याद रखिए, असर अल्फाज में नहीं, बल्कि यकीन और सच्चाई में होता है। फजीलत क्यों खास है यह सूरत? सूरह अल-मुज़्मिल की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआती तरबियत का हिस्सा है। जब दावत इस्लाम का बोझ डाला गया, तब अल्लाह ने रात की इबादत का सहारा दिया। इससे मालूम होता है कि जो इंसान दीन या दुनिया की किसी भी बड़ी जिम्मेदारी को निभाना चाहता है, उसे पहले अपनी रूह को मजबूत बनाना होगा। यह सूरत पढ़ने वाला इंसान गफलत से दूर होता है। उसका दिल नर्म होता है। वह तकलीफ में टूटता नहीं, बल्कि झुककर और मजबूत हो जाता है। कियामत के सख्त मज़रात का जिक्र इंसान को होश में लाता है और दुनिया की असलियत समझाता है। जो इस सूरत को अपना साथी बना ले, वह जिंदगी की दौड़ में भी अल्लाह को नहीं भूलता। जिंदगी में अमली पैगाम आज के दौर के लिए। आज की दुनिया बहुत तेज है। हर तरफ भागदौड़, शोर, मोबाइल, काम और जिम्मेदारियां हैं। ऐसे माहौल में सूरह अल-मुज़्मिल हमें एक सुनहरा उसूल देती है। अगर दिन भारी हो तो रात को अल्लाह के साथ हल्का कर लो। अगर लोग समझ न पाएं तो रब समझता है। अगर रास्ता लंबा लगे तो सब्र को साथी बना लो। यह सूरत सिखाती है कि कामयाबी का असली राज तन्हाई की इबादत में है। जो इंसान रात में अपने रब से बात करता है, वह दिन में लोगों से बेहतर तरीके से बात कर पाता है। जो रात में रो लेता है, वह दिन में मुस्कुरा सकता है। जो रात में कुरान पढ़ता है, उसकी जिंदगी में बरकत आ जाती है। सब्र इस सूरत का बड़ा पैगाम है। जब लोग बुरा कहें तो अच्छा जवाब दो या खामोशी से अलग हो जाओ। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, अपना किरदार बचाना जरूरी है। यही इस सूरत की हिदायत है। दोस्तों, सोचिए,
जब सारी दुनिया सो रही होती है, उस वक्त अगर आप अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं, तो वह कैसी घड़ी होगी? वह घड़ी आपकी तकदीर बदल सकती है। सूरह अल-मुज़्मिल हमें सिखाती है कि कामयाबी का रास्ता भीड़ में नहीं, बल्कि रात की तन्हाई में अल्लाह से मिलने में है। अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, दिल की मजबूती चाहते हैं और अल्लाह की खास रहमत चाहते हैं, तो इस सूरत को अपने रोजमर्रा का हिस्सा बना लीजिए। दोस्तों, सोचिए, अगर आज से आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बदलाव ले आए, और वह है रात में कुछ मिनट अपने रब के लिए खड़े होना, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सूरह अल-मुज़्मिल हमें याद दिलाती है कि अंधेरी रात ही उजाले की तैयारी करती है। जब आप दुनिया से कटकर अल्लाह से जुड़ते हैं, तो अल्लाह आपको दुनिया में सरफराज कर देता है। आज से इरादा कीजिए कि हफ्ते में कम से कम एक रात सिर्फ अल्लाह के नाम, कुरान की तिलावत, 2 आंसू और सच्ची दुआ। यही वह रास्ता है जो दिल को सुकून देता है और जिंदगी को मकसद देता है। अगर आपको यह बयान पसंद आया हो, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस रूहानी पैगाम से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हमें रात की इबादत की मिठास, कुरान से मोहब्बत और सब्र की ताकत अता फरमाए। आमीन। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी दीन की रोशनी से चमके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें। क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारियां और 2 जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीज़ों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।